Namaskar. Welcome to this edition of the India Foundation podcast. This edition of the India Foundation podcast features the Tithi Shastrat, the date debate. In this edition, we have with us Sri B.R. Mani, former Director General of the National Museum and former Additional Director General of the Archaeological Survey of India, Dr. Sanjay Manjul, Joint Director General of the Archaeological Survey of India. Let's begin. I'm thankful to the Draupadi Dream Trust and to the India Foundation for inviting me. Ancient cultures developed in India in different geopolitical areas, which are identifiable with ancient janas and janpadas. This is the reason why in different areas we find inhabitants living in Mesolithic, Neolithic, Bronze Age, and early Iron Age. For example, in the 4th millennium BCE, Mesolithic people were living in Vindhyan areas. Neolithic settlements were located in Kashmir, early Hadappans and Chalcolithic people in Haryana, Punjab, Rajasthan, and Gujarat, etc. Diffusion of these cultures through interactions brought about birth and growth of the great Indian civilization. Mahabharata represents this phase when representatives from different parts of the country sided either Kauravas or Pandavas in the Great War. The time of the Great War has remained controversial and put in either just before 3100 BC or around 9th century BCE. After his excavations of Hastinapur in the 1950s, Professor B.B. Lal, and I'm honored that Professor Lal is present in today with us in this meeting, had proposed the latter date with evidence of painted gravure as the representative pottery of this time. However, OCP or OCW, ochre colored ware and painted gravure combined together, in my opinion, may be representative ceramic of this period and therefore may be earlier than the date of 900 to 1000 BCE. The 9th century BCE seems to be a too younger date of the war, also considering that Atharvaved Samhita and Aitareya Brahmana, as also cited by Professor Lal in 2013, mention Parikshit and Janmejay respectively. And in our opinion, these texts mentioning these kings may not be later than the 8th or 9th century BCE, which is the date proposed for Mahabharat war. We get more evidence of Mahabharat events from tradition, epigraphs, archaeological, and astronomical dating. Chronology of the painted gravure culture has been a subject of debate and speculation since it first came to light. A time bracket of 1100 to 800 BC was given, associating this culture with the Mahabharat and possible date of war in between in about 900 BC. The chronology of the painted gravure cannot stand in isolation, rather, it is dependent on the chronology of the cultures which predated it, coexisted with it, or succeeded it. The first culture which was found to be predating the painted gravure was the OCW at Hastinapur and was given a date of pre 1200 BCE. The OCW of Ganeshwar area in Rajasthan long back gave dates of about 3000 BC. And the only thermoluminescence date from Lal Killa in Bulandshahr district was of 2200 BC. Most of the OCW deposits have been found to be waterborne and not much evidence regarding their habitation could be unearthed. The pottery, in spite of being black on red, was considered as red ware because of leaving ochreous color on rubbing. MDN Sahi has put forth the chronology of the OCW culture in pre-Harappan times at about 37 to 3000 BCE.
copper hoards considered to be associated with the OCW culture should also fall in the same time bracket. At most of the sites in the painted raware zone, painted raware is found to be preceded by a culture which is represented by black slipware and unpainted black and red ware. We cannot just ignore that painted raware has been found in a much earlier context in recent times. The sites are Kampil, Gosna, Abhaipur, Bateshwar, Alamgirpur, where the painted raware has been dated in the time bracket of 3200 to 2000 BC on C14 and TL dating methods. However, the general dating of painted raware from most of the sites still remain around 1300 to 900 BCE. The Hindu Panchang system also calculates Kali era from 3102 BC, which is further confirmed from the most accepted tradition from epigraphy in the Aihole stone inscription of Pulkeshin II, the Chalukya ruler, dated 634 CE. Thus, on one hand, the age of Mahabharat war around 800 to 850 BC is very logically suggested on the evidence of painted raware and the list of 24 rulers between Parikshit and Udayan. But on the other hand, the date of 3102 BC is nearer to the archaeological, epigraphical, traditional, and astronomical evidences, and therefore this seems to be plausible date of beginning of Kali era. However, I still believe that more archaeological evidences would be required in settling this issue, particularly connected with dating of OCP painted raware complex. A conclusive date for related events is also required from scientists dealing with astronomical dating. The Puranic tradition of 24 rulers, and particularly the 5 after Nichakshu, may need revision and understanding in view of the omissions of names of rulers, which is observed in many cases. ये एक ऐसा विषय है जिस पे चर्चा हो रही है, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जिस संदर्भ में मैं आज बात कर रहा हूँ और बात करने जा रहा हूँ सनौली एक्सकवेशन के बाद, हालांकि अगर हम सनौली की बात करें, सनौली उत्खनन की बात करें तो एक लंबे समय की आवश्यकता है। तो मैंने सिर्फ कुछ चंद स्लाइड के माध्यम से पहले सनौली एक्सकवेशन की बात करूंगा और उसके बाद उस संदर्भ में क्या कुछ प्रकाश पड़ सकता है महाभारत के युद्ध और उससे संबंध में, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसा कि बाकी इन विषय पे महाभारत से संबंधित बहुत सारी बातें ऑलरेडी की जा चुकी हैं और तो मैं उस पे ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, की विषय पे बात करूंगा कि महाभारत को कैसे सांस्कृतिक रूप से उसके डेट और समय को हम किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है सनौली एक्सकवेशन के बाद की अंडरस्टैंडिंग पे। जब हम सनौली एक्सकवेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग सनौली एक्सकवेशन की है वो है वॉर चैरियट, कॉपर डेकोरेटेड शील्ड, विप एंड टॉर्च, एंटीना सोर्ड्स जिसके साथ हिल्ट भी मिला है, कई एंटीना सोर्ड्स हैं और विशेषकर बो का इंप्रेशन, उसके साथ एरोहेड्स, हेलमेट जैसे वेपन्स का एक ग्रेव में मिलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी। और ये मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से कि 2005-6 के एक्सकवेशन में भी इसी तरह की फाइंडिंग मिली थी और जिसके अंश आप आज भी स्लाइड्स में या फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेवयार्ड है जिसमें 116 बरियल 2005-6 के एक्सकवेशन में रिपोर्ट हुए और 10 बरियल जो 2017-18, 18-19 की खुदाई में हमने प्राप्त किया, उन सब का समन्वित अगर हम अध्ययन करें तो ये समझ में आता है कि ये पूरा परिक्षेत्र में
ये शील्ड, सोर्ड इत्यादि जो वेपनरी है वो हमें इस ग्रेव के साथ मिल रहे हैं। ये जो ऊपर ओवरव्यू है, ये 10 बरियल जो हमने एक्सकवेट में किए हैं उनका ओवरव्यू है, जिसमें 5 ऐसे बरियल थे जो कॉफिन बरियल थे और उनके साथ वेपन्स और तो थे ही। 2 बरियल ऐसे थे जिसके साथ हमें चैरियट मिला। एक बरियल में बरियल नंबर 6 में 2 चैरियट और बरियल नंबर 3 में 1 चैरियट के एविडेंस मिले। इसके अलावा ये बहुत ही एलोबरेट बरियल है। अगर आप बरियल का पिट देखेंगे तो वो काफी बड़ा है और संभवतः जो जितना कुछ हमने खुदाई किया उसमें जो एविडेंसेस हैं वो 40-50% एविडेंसेस हैं और 40% 50% एविडेंस जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जैसे कि लकड़ी से बने सामान के इम्प्रिंट्स और इम्प्रेशंस मिल रहे हैं, लेकिन हम उसके शेप साइज उसको हम नहीं समझ पा रहे थे। अगर हम जैसा कि मैंने कहा कि 5 बरियल जो है वो कॉफिन बरियल मिले और उसमें से 3 ऐसे बरियल थे जो फ्रेगमेंटरी थे यानी सेकेंडरी बरियल्स थे और 2 ऐसे बरियल हैं जो सिंबॉलिक हैं जिसमें किसी भी तरह का अस्थि अवशेष नहीं मिला, बल्कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो ग्रेव गुड्स हैं वो हमें मिले। तो एक यूनिक कुछ बरियल के अगर आप टॉप व्यू देखें तो ये कॉफिन है और कॉफिन के साथ हेलमेट है, शील्ड है और चैरियट का व्हील है और एंटीना सोर्ड है और मशाल है साथ में। इसके साथ साथ कॉपर के चैनल्स थे और गोल्ड बीड्स थे और सिल्वर के कुछ टुकड़े भी हमें मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बरियल सिस्टम है वो बहुत ही एलोबरेट से। ये कुछ आप देखेंगे व्हील, जो गोलाकार व्हील है उसमें कॉपर का इनले किया गया है और ये चैरियट का पोल है कॉफिन के साथ में। नेक्स्ट, ये कुछ आप देखेंगे जो सोर्ड्स हमें मिले, एंटीना सोर्ड, उसमें सबसे पहले हिल्ट मिला। जिस पहले जो भी एंटीना सोर्ड्स मिले थे एक्सकवेशन में या चांस फाइंडिंग में कई जगहों पे पूरे कॉपरवुड और ओसीपी के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या यूज था ये हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हिल्ट के मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये एक ऐसा वेपन है जिसको बहुत भली भांति इसको यूज किया जा सकता है युद्ध और उसमें। नेक्स्ट, ये कुछ सिंबॉलिक बरियल हैं जिसमें ये दिख रहा है कि जो बोन्स हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ बरीड किया गया है और कुछ बरियल्स ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ भी बोन्स नहीं मिल रहे हैं। ये एक बरियल नंबर 9 का दृश्य है जिसमें हमें बो और 4 बोन पॉइंट्स मिले, एरो हेड उसके के रूप में शायद इस्तेमाल हुआ होगा, उसके साथ रखे हुए। तो एक इम्प्रेशन जो है वो बो का इम्प्रेशन हमें मिला है, धनुष का इम्प्रेशन मिला है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी इस एक्सकवेशन में। ये एक आप बरियल नंबर 9 और 10 के पास एक सेक्रेट चेंबर जिसको हमने कहने की कोशिश की है, ये आधा जो बरीड है और पिट के अंदर ब्रिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, संभवतः सुपर स्ट्रक्चर लकड़ी का रहा होगा। ये पूरे बरियल से के साथ एसोसिएटेड है, संभवतः लास्ट रिचुअल के समय डेड बॉडी को इसमें रखा जाता होगा और तो इसमें कुछ बर्निंग एविडेंसेस मिले हैं, थोड़े से बर्निंग एविडेंसेस भी मिले हैं और इसके अंदर 2 स्टेप है। जो अंदर का स्टेप है उसमें पूरे कॉफिन का एक साइज बड़े आराम से रखा जा सकता है और सब बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया था। ये कुछ 2005-6 के एविडेंसेस, आप ये 8 शेप जो देख रहे हैं ये शील्ड है और जब हमने इसका सीटी स्कैन किया और एक्सरे किया तब इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम समझ पाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जिस चैरियट की हम बात कर रहे हैं वो चैरियट है और चैरियट के सारे कंपोनेंट,
चाहे वो उसका अंदरूनी ढांचा हो या उसके ऊपर का पोल हो जो छत्र बनाने के लिए हो या जुआ हो, वो सारे कंपोनेंट हमें चैरियट के मिले हैं। और उसके साइज और उसको देखने से स्पष्ट होता है कि ये एक वॉर चैरियट है और इसमें एक या दो व्यक्ति से ज्यादा इसको चला नहीं सकता है। ये कुछ अलग अलग व्यू है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से इस चैरियट की पूरी संरचना रही होगी। ये आप व्हील जो ट्विन दो एक साथ चैरियट मिले, अगर आप उसके व्हील को देखें तो उस व्हील में ट्रायंगल्स डिजाइन है जो 3 रो में बने हुए हैं और एक रेडिएटेड सन की तरह वो दिखाई देता है। नेक्स्ट और बड़ा ये अंदरूनी ढांचा, और इसको अगर पूरा समग्र रूप में अगर देखें चैरियट तो इस प्रकार का दिखाई देता है चैरियट, जिसके व्हील और वो सब कुछ दिखा। इसके कुछ पार्ट को, खासकर जो डैशबोर्ड का पार्ट है, उसको भी हमने एक्सरे और सीटी स्कैन के माध्यम से समझने की कोशिश की। तो उसकी जो डिजाइनिंग है वो इस तरह के इंप्रेशंस उसमें दिखाई दिए और कार्विंग दिखाई दे रहा है लकड़ी के। उसके साथ एक विप भी मिला है जो स्पष्ट करता है, और उसके साइज, शेप, और अगर उसको देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि ये इसमें घोड़ा लगाया जाता रहा होगा। और क्योंकि उसका जो जुआ है वो बहुत ही छोटा है, जो बुल के ऊपर नहीं रखा जा सकता। दूसरा जो विप है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उसमें आगे लेदर का स्ट्रिप लगाया गया होगा और ये चाबुक की तरह यूज किया गया, जो खासकर ये घोड़े के साथ होता है। दूसरे जानवरों के साथ स्टिक का हम यूज करते हैं, खासकर बैल और उसके साथ स्टिक का यूज किया जाता है, जबकि घोड़े के साथ चाबुक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हेलमेट आप देख रहे हैं ये कॉपर हेलमेट है और इसकी जो पूरी व्यवस्था है वो आराम से एक सामान्य हेड में फिट हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, जब सनौली की हम बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी फाइंडिंग को, चाहे वो सनौली की फाइंडिंग हो या किसी भी फाइंडिंग को, हम किसी पर्टिकुलर टाइम ब्रैकेट से या किसी इवेंट से हम जोड़ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। और खासकर मेरा ये उद्देश्य सनौली को दिखाने का ये नहीं है कि सनौली को हम महाभारत से जोड़ रहे हैं, बल्कि एक स्पष्ट ये समझना जरूरी है कि सनौली में जो फाइंडिंग मिली है और जिस कल्चर को वो डिनोट करता है, संभवतः वो कल्चर रिस्पॉन्सिबल है, ये सनौली के जैसा कल्चर रिस्पॉन्सिबल है महाभारत के लिए। क्योंकि महाभारत में जिन चीजों की चर्चा है, वेपनरी की चर्चा है, रथ की चर्चा है, अर्बन कल्चर की चर्चा है, उन सारे विषयों को अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें सनौली की फाइंडिंग की याद दिलाता है या उसकी फाइंडिंग को एक समझने का मौका देता है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अराउंड 2100, जो सनौली के डेट हैं 2100 से 1900 बीसी, उस टाइम ब्रैकेट में ऐसे कल्चर जहां एक आधुनिक वेपन्स बनाए जाते थे और आधुनिक वेपन्स का यूज हो रहा था, चैरियट का यूज हो रहा था, वो उपलब्ध है इस परिक्षेत्र में, जिसको हम, चूंकि ये बागपत में स्थित है सनौली, तो बागपत का जो क्षेत्र है वो कुरु वंश के साथ उसका रिलेशन है। तो हमें इस 2-3 तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि आर्कियोलॉजी और महाभारत को हम कैसे समझने की कोशिश करें या कैसे हम उसको समझें कि आर्कियोलॉजी और महाभारत क्या है। तो जो आधारभूत संरचना हमें मिला है, प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जो एक आधार हमें दिया है, हम उस आधार को और उस एक पूरी परिकल्पना और उस आधार को हम आगे बढ़ाते हुए अगर हम सोचते हैं तो जो लाल साहब ने हमें एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, हम उसी आधार पे आगे हम बढ़ के हम सोचते हैं तो 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला, जो पीजीडब्ल्यू कल्चर वर्सेस ओसीपी कल्चर या कॉपर होड कल्चर जो सनौली में हमें देखने को मिलता है और सनौली के आसपास के स्थलों पे देखने को मिलता है, तो उन दोनों में
क्या कौन सा कल्चर ज्यादा करीब है महाभारत में, जो जिस कल्चर की बात हो रही है या जिस कल्चर को हम समझ पा रहे हैं, उन दोनों में कौन ज्यादा नजदीक दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस परिक्षेत्र की बात किया जा रहा है महाभारत में, खासकर कोर जोन की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल साइट्स की बात करें, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, या 5 ऐसे विलेज, बागपत, सोनीपत, तिलपत, और इन 5 विलेज की बात करें, या फिर कौशाम्बी की बात करें, तो इन 4-5 जो एक कुरुक्षेत्र यानी कुरुवंश का जो पूरा क्षेत्र था, उन कोर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग सभी स्थलों पे जो लोअर स्ट्राटा में है वो पेंटेड ग्रेव ओसीपी कल्चर, कॉपर होड कल्चर दिखाई देता है। पहली, अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो उनका जो लोएस्ट स्ट्राटा है वो ओसीपी का है। अगर हम ये बरनाबत की बात करें, वर्नाबा की बात करें, तो बरनाबा के जस्ट सटे हुए 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है चंदायन। चंदायन के एक्सकवेशन से भी हमें ओसीपी कॉपर होड कल्चर के रिमेन्स मिलते हैं। बागपत की बात करें तो बागपत में भी हमें सनौली जैसे स्थलों पे ओसीपी कॉपर होड के रिमेन्स मिल रहे हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी कॉपर होड के एविडेंसेस हमें मिले थे राजा कर्ण के टीला के पास। इस तरह से ज्यादातर स्थलों पे हमें ओसीपी का निम्न स्ट्राटा में ओसीपी मिल रहा है। अगर हम कल्चरली बात करें, ये एक सबसे अर्लीस्ट डिपॉजिट की बात हो गई। अगर हम कल्चर की बात करें तो पीजीडब्ल्यू कल्चर एक रूरल कल्चर है, ये सब मान्य है। और ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर टूल मिलते हैं। ओनली कुछ एरोहेड्स या बोन एरोहेड्स हमें मिलते हैं, नहीं तो ज्यादातर एग्रीकल्चर टूल मिलते हैं आयरन के। किसी तरह का चैरियट उसका प्रमाण नहीं मिला है। और अगर हम पॉटरी भी देखें तो एक लिमिटेड स्टाइल है पॉटरी का और लिमिटेड ट्रेडिशन है पॉटरी का। तो इस तरह से कल्चरल रिलेशन की हमें बात करनी होगी। और अगर हम उसके आगे बढ़े, दूसरी बात है अगर हम डेट को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, तो शांतनु से अगर हम शुरू करें या कुरुवंश की हम पूरी बात करते हैं, कुरु ज्यूनोलॉजी की, तो 7वें जो 7th जनरेशन है वो शांतनु है। और शांतनु का अगर हम डेट करें, खासकर जो हमने टाइम ब्रैकेट 50 साल, अगर हम एक जनरेशन की बात करते हैं, अगर हम 50 साल रैंडम रखते हैं तो इसका डेट जो है लगभग 350 साल वो 7 जनरेशन का जाता है। तो 2300 से 1950 बीसी के आसपास इसके डेट जा सकते हैं। इसका आधार ये है कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे डेट्स हमें जो ओसीपी के डेट्स जा रहे हैं वो 2400 बीसी से लगातार 1900 1800 बीसी तक के डेट अपर गंगा यमुना दोआब में कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम युधिष्ठिर की बात करें तो 10th जनरेशन यानी 3 जनरेशन 50 साल से अगर हम काउंट करते हैं तो 150 साल आता है। तो 1950 से 1800 का डेट वहां जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर हम बैकवर्ड्स काउंट करें, खासकर जो उदयन ये कंटेम्पररी बुद्धा के कंटेम्पररी थे, उदयन की बात करें, और सेम 50 साल से अगर हम 24 को काउंट करते हैं तो 1200 साल और 550, तो लगभग 1750 बीसी के आसपास का डेट जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 1800 से 1700 के मध्य हम महाभारत का डेट कर सकते हैं, अगर उन पैरामीटर्स को भी अगर हम ध्यान में रखें। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम यहाँ जनरेशन की बात कर रहे हैं, न कि किसी एक राजा के बाद दूसरे राजा की बात कर रहे हैं। तो जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो उसका टाइम हम लगभग 50 साल तक रख सकते हैं, जबकि एक राजा से दूसरे राजा की अगर हम बात करें तो उसके टाइम पीरियड में डिफरेंट वेरिएशंस हो सकता है। तो एक ये टेंटेटिव डेट जो हम प्रपोज कर रहे हैं और टेंटेटिव टाइम ब्रैकेट प्रपोज कर रहे हैं, वो महाभारत का मेरी समझ से ये है। ये सेम बात
और अगर आप वेपन्स देखें तो शायद अनपैरेलल है, किसी भी कल्चर में इस तरह के वेपन्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में नहीं है, बल्कि दूसरे अगर आप इजिप्ट और जगह की भी बात करें तो इतना एडवांस वेपनरी शायद और किसी कल्चर में नहीं है, न बाद में न पहले। Thank you so much for listening to this edition of the India Foundation podcast. Do like, share, and subscribe the India Foundation channel.